Okay. Okay. So today we will discuss about in previous class we have discussed already discussed. Am I visible? No? Am I audible? No? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in previous class we have studied about how to convolve or combine any two signals like by using convolution sum. And in convolution, you have already studied about how to find out convolution of two signals in a system and what are the methodologies has to be followed as well as what are the shortcut methods was followed to find out the convolution sum of two signals. Now today I will discuss about interconnection of LTI system, that is linear time invariant system. Okay. So now suppose two systems are there, ठीक है, like your connection of two devices. अगर मैं तुमको दो डिवाइस दे दूं और कह दूं and I told you that connect these two devices, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? How many types of connection you can follow? Obviously two types of connection mechanism as per our knowledge in basic electrical, as electrical engineering you have the very much knowledge about connection of two device or connection of two components. That is, connection can be classified into two categories. Connection classified into two categories: one is series, another is parallel. So in case of signal system also the connection of two system, okay? So the connection of two systems also can be classified into two categories. That is, first one is series is known as cascade connection, and parallel is known as parallel connection. Cascade means series, ठीक है. तो whenever we are giving two systems, that is, suppose a signal 1 is faded with system 1 and signal 2 is faded with system 2. Now we have to combine two systems, then the system has to be connected in two ways. That is, one is cascade connection and another one is parallel connection. Okay, so now we will see how the cascade connection and parallel connection will be occurred. So in case of cascade connection, first point is, because this connection mechanism is recommended to find out the deconvolution, ठीक है. So now cascade connection, suppose two system, that is, first system named H1n is the first system and second system is named H2n, second system. Now if we will represent the system in the block, then how it will look like? This is H1n, has some input and output, and this is H2n, has some input output as well as input. Now if both the system is connected in cascade way, so this topic is named as cascade connection of two system. So if these two system is connected in cascade way, then how it will look? That is H1n and
उसके बाद ही आएगा इसका जो आउटपुट जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा सिस्टम का इनपुट, दैट इज H2n, let it be Yn. So this is X1n as Xn, that is input, and this is Y1n. So I can note this, that is Xn is the input signal. ठीक है, उसके बाद आ रहा है H1n is the first system, उसके बाद आ रहा है Y1n, it is the output of first system and input of second system. So मेरा second system क्या होगा तब फिर, H2n is the second system and Yn is the output signal from system 2 or second system from second system. Okay, so these are the notation. Now what are the operations? ठीक है, so remember one thing, whenever two system is connected in cascade connection, cascade connection, then the two system is represented by a single system by combining both of them, H1n and H2n. ठीक है, ये Yn है और ये Xn है, नाउ Y1n. सो ये दो सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन करके खुद एक सिस्टम है. ठीक है, ये दोनों को मिला के एक सिस्टम आ सकता है एंड दैट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय H ऑफ n. सो दिस सिस्टम नाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, दैट इज Xn input is given to the system having two subsystem, that is H1n and H2n, that is denoted by Hn, and it will give you Yn. ठीक है, जैसे तुम लोग एक सर्किट बनाते हो, लाइक दो सर्किट को मिला के अगर एक सर्किट बनाते हो, दैट इज कोई भी एक सर्किट ले लो, जैसे एलईडी बल्ब, तो एलईडी को मिला के अगर तुम एक सर्किट बनाते हो, उसके साथ अगर अलार्म लगाते हो, तो एलईडी का कनेक्शन एक सर्किट है और अलार्म का कनेक्शन दूसरा सर्किट है. दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, एलईडी अलार्म एक अलग सा डिवाइस बनाते हैं, जिस डिवाइस को हम एक बॉक्स में रख देते हैं और वो बॉक्स खुद एक सिस्टम है. तो दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन खुद एक सिस्टम है. तो आई कैन से H of n is the main system and H1n and H2n the subsystem, where H1n and H2n are the individual system also. ठीक है, लाइक ये कंप्यूटर, कंप्यूटर जब तुम लोग गेम खेलते हो, ठीक है, कंप्यूटर में जब गेम खेलते हो तो वो गेमिंग सिस्टम के हिसाब से काम आता है. कंप्यूटर में जब तुम लोग क्लास कर रहे हो तो वो क्लास का एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और दोनों को मिला के कंप्यूटर खुद एक सिस्टम है. So that is Hn. ठीक है, so whenever the system is connected in cascade connection, then always remember that Hn equal to H1n convolution H2n. If connection is cascade connection, for cascade connection, ये याद रखना. ठीक है, H1n और H2n अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो H of n होगा H1n convolution H2n. ठीक है, नेक्स्ट वन पैरेलल कनेक्शन. So can anyone define what do you mean by parallel connection? Because इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, सीरीज पैरेलल से तुम सीरीज पैरेलल को लेकर तुमको पूरा लाइफ भर चलना है. ठीक है, तो कैन यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कनेक्शन? What do you mean by parallel connection?
कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कनेक्शन? इसको पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? सर इन पैरेलल कलेक्शन में से जिसमें सर इंस्ट्रूमेंट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये तो पैरेलल, फिर पैरेलल और होता सीरीज क्या है? में लिनियरली कनेक्ट करते हैं। पैरेलल होता क्या है, क्यों इसको पैरेलल कहते हैं? लाइक देखो, मैं जब तुम लोगों का सर क्लास ले रहा वोल्टेज हूँ, ड्रॉप। ठीक है, पहले सुनो, मैं जब तुम लोगों को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एट ए टाइम तुम लोग जितना स्टूडेंट्स हो, सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल सबके पास पहुंच रहा है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये यस हो गया पैरेलली, यस मतलब सर। एट ए टाइम यू ऑल कैन एक्सेस द सेम सिग्नल विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन सिग्नल। ठीक है, एट ए सेम टाइम इफ ऑल द कंपोनेंट्स is accessing the same signal, then this type of connection is known as parallel connection. सीरीज में क्या होता है, जैसे अभी मैं तुम लोगों को सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, तो मैं जब रिसीव कर रहा हूं एट ए टाइम दोनों स्टूडेंट का आंसर रिसीव नहीं कर रहा हूं, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं एक टाइम स्लॉट, सपोज पहला 5 मिनट में मैं एक स्टूडेंट का बात सुनूंगा, दूसरे 5 मिनट में मैं दूसरा स्टूडेंट का बात सुनूंगा, तो एट ए टाइम मुझे हर एक टोटल सिग्नल नहीं मिल रहा है, एट ए टाइम मुझे टोटल सिग्नल नहीं मिल रहा है, मुझे क्या कर रहा है, वन बाय वन, दैट इज पाथ इज डिवाइडेड। जब मैं स्टूडेंट वन का आंसर सुन रहा हूं, तो स्टूडेंट टू वो पाथ को यूज नहीं कर पा रहा है, तब अगर मैं स्टूडेंट टू का आंसर सुनूंगा तो स्टूडेंट थ्री वो पाथ को डिवाइड एक्सेस नहीं कर रहा है, सो पाथ इज वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूटेड। सो पैरेलल में क्या होता है, एट ए टाइम, तो एट ए टाइम सपोज इन दिस केस ऑल्सो H1n is the first system and H2n is the second system. ठीक है, now how it will be connected? So let it be x of n. This is the input signal. At a time, तो एट ए टाइम अगर होगा तो ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा, एट ए टाइम डिवाइड हो जाएगा। नाउ यहां पे जाएगा तुम्हारा H1n, यहाँ पे H1n और यहाँ पे H2n। सो H1n H2n, सो दोनों का अलग अलग सा आउटपुट निकलेगा, बट मुझे चाहिए एक ही आउटपुट y ऑफ n। सो क्या करना पड़ेगा, नाउ इट विल बी एडेड, दोनों को अलग अलग आउटपुट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, this is the second system, this is the output and this is the input। तो इसमें मेरा फायदा क्या हो रहा है, मेरा एक ही फायदा हो रहा है कि सिग्नल अलग अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अगर सपोज यहां से मेरा सिग्नल का कुछ भी डिस्टरबेंस आया, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से सिग्नल यहां पहुंच नहीं पाएगा, तो मेरा पूरा आउटपुट रुक जाएगा। बट इन दिस पैरेलल में क्या हो रहा है, अगर मेरा यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ तो आउटपुट दूसरे से मिलेगा, तो दूसरे में मुझे जितना आउटपुट मिलना चाहिए, दो सिस्टम मिला के जो मेरा आउटपुट मिलना चाहिए वो मेरा मिल नहीं रहा है, तो वहीं से हम समझ जाएंगे कि मेरा सिस्टम में कुछ खराबी है। पहले में क्या होगा, सपोज मैं इनपुट बंद कर दिया हूं, ठीक है, तो आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा, ये एक केस है। दूसरा केस है, अगर y1 में कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे कुछ फॉल्ट निकला, तो H2n को सप्लाई नहीं मिलेगा, yn जीरो आ जाएगा। तो दोनों केस में जीरो है, एक जीरो इनपुट में जीरो है, और एक अगर मुझे इंटरमीडिएट पाथ में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ फॉल्ट हुआ, तो भी मुझे जीरो मिलेगा। तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मेरा इनपुट जीरो दिया गया है या इनपुट बंद किया गया है, या बीच में रास्ते में कुछ खराबी है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बट पैरेलल में देखो, मेरा इनपुट दोनों सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट बंद कर दूंगा तभी मेरा y ऑफ जीरो जीरो आएगा। अगर मैं इनपुट चालू कर दूंगा और H1 अगर खराब हो गया तो H2 से मेरा सप्लाई आएगा, तो मैं सप्लाई जो एक्सपेक्टेड है वो सप्लाई नहीं आ पा रहा है।
तो वहीं से मैं समझ जाऊंगा इंस्ट्रूमेंट के बीच में या सिस्टम के बीच में कुछ खराबी है। तो डिटेक्शन ऑफ fault system is very much easy in parallel connection rather than your cascade connection। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा तुम्हारा सिंपल एकदम सिंपल सा तुम्हारा फॉर्मूला है, दैट इज अगर ये देखो H(1n) एंड H(2n) ये दोनों ऐड हो रहा है, तो सिंपली अगर इसको हम सेम सिस्टम में एक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहां से टोटल, यहां से टोटल एक सिस्टम है, ये टोटल खुद एक सिस्टम है, तो ये हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x(n), H(n), that is y(n), that is output, system, input, and in this case H(n) simply addition of H(1n) and H2n for parallel connection। ठीक है, तो ये दो अंतर है तुम्हारा कैस्केड और पैरेलल में। कैस्केड में दो सिस्टम कन्वोल्यूशन होता है, पैरेलल में सिंपली एडिशन होता है। ठीक है, एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो समझ में सर। आया? हाँ, बोलो, सबको समझ में आया? अगर नहीं है तो रेज योर हैंड। अगर सबको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूंगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहा हूं। नाउ एग्जाम्पल, यहां क्वेश्चन कैसे आता है, एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ठीक है, एक कनेक्शन दिया गया है तुम्हें x(n) इनपुट, ठीक है, वहां से दिया गया है H(1n), फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज H(2n) and H(3n). Add a circuit now y of n। ये मेरा एक सिस्टम है जहां पे मेरा दे दिया गया है गिवन डेटा H(1n) इक्वल टू 2 to the power n un माइनस n माइनस 3। ठीक है, H(2n) दे दिया गया है डेल्टा n एंड H(3n) दे दिया गया है un माइनस 1। सो क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेस H(1n) सॉरी एक्सप्रेस H of n in terms of H(1n), H(2n) and H(3n। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है इवेलुएट H of n, दैट इज वैल्यू ऑफ H of n। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देता है। ठीक है, इन एग्जाम और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बेटर टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर कोई कॉपी, सबसे बेटर होगा एक, जब सिग्नल सिस्टम या कोई भी न्यूमेरिकल पेपर है, सबसे बेटर होगा एक पेज ले लो या कॉपी ले लो, अपने पास रखो, जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे नोट कर दो।
ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग है सोल्यूशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन, तो देखो मेरा सिस्टम क्या है, एक्स ऑफ एन है, ये H1 में जा रहा है, H1 फिर डिवाइड होके दो हिस्सों में बट रहा है, एक H1n सॉरी H2n एंड H3n, इसमें बट रहा है। नाउ ये दोनों ऐड हो रहा है, y of n। नाउ मैं क्या करूंगा, इसको पहले कॉन्सिडर करूंगा, दिस पोर्शन को पहले कॉन्सिडर करूंगा, ठीक है। दिस पोर्शन को आई विल कंसिडर फर्स्ट। सो अगर इस पोर्शन को कंसिडर करूंगा तो इसको मैं ले रहा हूँ एच डैश एन, बिकॉज एच एन नहीं ले सकता, क्वेश्चन में एच एन पूछा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माई कनेक्शन मैकेनिज्म एच डैश एन can be represented by H1n, sorry, H2n, H2n plus H3n। तो ये हो गया H dash n। So now the system is question number 1 solve करें, ठीक है, portion number 1। So now the system will look like this: x of n, H1n, H dash n, which is nothing but H2n plus H3n, and then we will get the output yn, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी दो सिस्टम आ चुका है, ये है H डैश n और ये H1n। दोनों सिस्टम किस कनेक्शन में कनेक्टेड है? कैस्केड कनेक्शन में। सो इसको पहले हम नाउ वी विल कंसीडर दिस टू सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे। सो ये दो सिस्टम को मैं H डबल डैश n और आई कैन से फाइनल है तो जरूरत नहीं है H डबल डैश n, दैट इज Hn। और कोई सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम नहीं है। सो x ऑफ n नाउ रिप्रेजेंट विथ H of n will give you the output y of n। So now H of n is the combination of H1n and H dash n। So यहाँ पे हम लिख सकते हैं H1n convolution H dash n। So now H of n is H1n convolution H dash n, ठीक है। now H1n convolution with H dash n, H dash n क्या है? H2n plus H3n। सो नॉर्मल तुम्हारा सिंपल कैलकुलेशन होगा H1n convolution H2n plus H1n convolution H3n। So this is Hn। So this is the answer of the first question, that is represent or express H1n Hn in terms of H1, H2 and H3. That is the solution of the first question, first part of the question। Now second part, evaluation of Hn। So evaluation of second part, evaluation of Hn is the second part। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे दो पार्ट है, दैट इज H1n इज गिवन। H1n क्या दिया गया है? हाफ टू द पावर n u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 3, ये मेरा दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। H2n क्या दिया गया है? डेल्टा n। एंड H3n मेरा क्या दिया गया है? that is u of n minus 1। So now I have to calculate, now I have to put the values।
सो ना पहला मेरा क्या वैल्यू पुट करूंगा मेन सोल्यूशन पे, दिस पोर्शन आई हैव टू पुट। नाउ ये इक्वेशन में एक बार लिख लूंगा, दैट इज h ऑफ n इक्वल टू h1n convolution h2n प्लस h1n convolution h3n। नाउ मैं इसको दूंगा फर्स्ट पार्ट, इसको रखूंगा सेकेंड पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट ए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट ए कैलकुलेशन करूंगा। पार्ट ए में क्या है, दैट इज h1n convolution with h2n। so now put the value, half n, that is un minus un minus 3 convolution with delta n। ठीक है, so delta n is a unit signal, unit impulse signal 1, so whatever its value may be, that is x of n convolution with delta n, it will give you xn, that is 1। 1 से किसी भी ऑपरेशन को अगर तुम करोगे, that is डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो 1 ही देगा। ठीक है, सो वो 1 के साथ वो ही वैल्यू देगा, that is x of n convolution delta n will give you xn। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसको xn पकड़े और डेल्टा n पकड़े तो यही वैल्यू देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू को मेरा लिखना पड़ेगा, 1/2 टू द पावर n un माइनस 3। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, दैट इज h1n कॉन्वोल्यूशन h2n। ये पार्ट मेरा निकल गया, फर्स्ट पार्ट निकल गया, दैट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। नाउ पार्ट बी कैलकुलेशन, पार्ट बी कैलकुलेशन। पार्ट बी कैलकुलेशन में क्या है, h1n कॉन्वोल्यूशन विथ h3n। सो h1n का वैल्यू एज इट इज 1/2 टू द पावर n un minus un minus 3, that is convolution with u of n minus 1। so now क्या करना पड़ेगा, convolution with u of n minus 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग कर देते हैं, that is 1 to the power half to the power n, un इधर है, so un convolution with u of n minus 1 minus half to the power n u of n minus 3 convolution, sorry, n minus 3 convolution with u of n minus 1। ठीक, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे भी देखो दो पार्ट हो चुका है, सो दो पार्ट को दोनों अलग अलग तरीके से निकालेंगे। इसको हम दे रहे हैं टर्म y1n एंड इसको टर्म दे रहे हैं y2n। ठीक है, सो y1n यहाँ पे क्या होगा, y1n इक्वल टू हाफ टू द पावर n un convolution with u of n minus 1। ठीक है, सो नाउ मेरा y1 दिस मच जा रहा है। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्वोल्यूशन, दैट इज k टर्म्स 0 टू n है, टू दी पावर n है तो n नहीं लेंगे, 0 से चालू कर रहे हैं तो n माइनस 1 लेंगे, सिंस n तक है n माइनस 1, लास्ट वैल्यू है n माइनस 1, सो n माइनस 1 तक लेंगे। नाउ दिस इज k, हाफ n के जगह k पुट करते हैं,
ठीक है, एंड दिस इज hn, ठीक है, hn in your convolution sum, so it will give you hn minus k, that is -1 minus k. so ये तुम्हारा कन्वोल्यूशन सम देके निकालो क्या होगा, टेल मी. दैट इज un है कन्वोल्यूशन विथ, सॉरी, u k आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा u n माइनस वन माइनस के, ठीक है, ये n के जगह होगा u n माइनस वन माइनस के. सो नाउ इन दोनों का अगर कंबाइन करेंगे तो देखेंगे इन दोनों का वैल्यू, ठीक है, u k और n माइनस वन माइनस के, दैट मीन्स n माइनस वन माइनस के, दैट मीन्स माइनस के प्लस n माइनस वन शिफ्ट हो जाएगा n माइनस वन तक. तो ये दोनों का वैल्यू ऑलवेज गिव्स यू वन, ये याद रखना शॉर्टकट मेथड. अगर कोई भी सिग्नल दैट इज यू एन कॉन्वोल्यूशन ऑफ n माइनस वन, और हम कह सकते हैं इसको मत लिखो, यू के इंटू यू n माइनस वन माइनस के, अगर इस तरह का टर्म आया दैट इज n माइनस वन टर्म अगर वहां से एडवांस हुआ माइनस के का, तो वो ऑलवेज गिव्स यू वन, ठीक है, क्योंकि n माइनस वन टर्म वहां से माइनस हो जाएगा, 0 टू n माइनस वन टर्म माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या रहा, kth टर्म बाकी रहा, तो वो kth टर्म इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म, दैट इज यूनिट इंपल्स, दैट इज वन रहेगा. सो इट विल गिव्स यू वन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, एंड इट विल जीरो फॉर n लेस देन वन. दैट इज, इसका मतलब क्या है, सपोज यहां से यूनिट इंपल्स मल्टीप्लाइड है तो ये यूनिट इंपल्स वन रहेगा, ठीक है, जीरो से मेरा k तक वैल्यू है, तो जीरो से k तक वैल्यू है, जीरो से k तक वैल्यू को हम n माइनस वन तक एडवांस कर दें तो मेरा क्या आएगा, ये शिफ्ट होके ये k जो है यहाँ चला आएगा, ये k है यहाँ चला आएगा, ठीक है. सो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू वन है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जहां कहा था यहाँ पे डेल n मल्टीप्लाइड है, सो डेल n वन है, सो इट विल गिव्स यू वन, ठीक है. सो दिस वन इज द कंडीशन. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y वन है, ठीक है, y n का वैल्यू पुट करो. y वन का वैल्यू पुट करो, और शॉर्टकट मेथड और एक बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों का कन्वोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों का कन्वोल्यूशन और ये वाला टर्म दैट इज वाई एन मल्टीप्लाइड विथ n माइनस वन का टर्म क्या होगा, दैट इज, इसको लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन, ठीक है, प्लस वन, ये लिख सकते हैं, और वाई एन माइनस जीरो इंटू यू एन माइनस जीरो इंटू यू एन माइनस वन. सो इसका सबसे बढ़िया वैल्यू, बढ़िया शॉर्टकट है n माइनस ए और u ऑफ n माइनस बी अगर हुआ, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का सेम अगर हुआ तो इसका रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी, ठीक है, और यू कैन से a प्लस बी, बेटर a प्लस बी यू विल राइट. तो n का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, में इसका वैल्यू आ जाएगा वन, और n लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू a प्लस बी में इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, ये याद रखना, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है यू एन, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ फ्रेश से, n माइनस वन, सो इसको हम लिख सकते हैं यू एन माइनस जीरो यू एन माइनस वन, सो इट विल गिव्स यू वन, दैट इज लेट इट बी एस ऑफ n इक्वल टू, सो एस ऑफ n का कंडीशन रहेगा वन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो
+1 और 0 फॉर n लेस देन इक्वल टू 0 +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो u ऑफ n मतलब u ऑफ n माइनस वन, n माइनस जीरो, n माइनस वन, तो ये दोनों का समेशन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दिस मच। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड आउट दिस इक्वेशन। सो y1n इक्वल टू 2 to the power summation of k equal to 0 to n minus 1 half 2 to the power n। ये हो गया मेरा सोल्यूशन। सॉरी, n नहीं, ये कन्वोल्यूशन का है ना, तो इसमें k पुट करेंगे, k पुट करेंगे। ओके, और यू कैन से इसको तुम डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट मेथड पुट करो, तुम्हारा कन्वोल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा, कन्वोल्यूशन क्योंकि वो पार्ट तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन को लेके काम कर रहे हैं, तो बेटर वी विल यूज कन्वोल्यूशन सम। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन, सो ये पोर्शन 1 हो गया, तो वो पोर्शन को निकाल देते हैं। नाउ मेरे पास रहेगा y1n इज दिस मच। ठीक है, नाउ आते हैं y2n पे, y2n। सो y2n का वैल्यू क्या है? y2n का वैल्यू क्या है? हाफ -3 -1। y2n का वैल्यू है हाफ टू द पावर n u ऑफ n minus 3 u ऑफ n minus 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन सम दैट इज k इक्वल टू, इसका लोअर लिमिट लेंगे हम, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वही किया था कि इसका लोअर लिमिट क्या है? 0। ठीक है, इसका लोअर लिमिट क्या है? n माइनस 0, तो 0, और इसका लिमिट क्या है? n माइनस 1, सो n माइनस 1। सो लोअर लिमिट 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे -3 आएगा। सो -3 नहीं आएगा, n माइनस 0 दैट इज a, दैट इज 3, और इसका अपर लिमिट क्या है? दैट इज 1, n माइनस 1, सो n माइनस 1। इसका लोअर लिमिट बाय इसका टोटल लिमिट 3 to n minus 1। now 1 to the power 2 k। now देखो, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, n ऑफ u ऑफ n minus 3 कॉन्वोल्यूशन u ऑफ n minus 1। सो इसका वैल्यू 1 रहेगा। कब रहेगा? जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 plus 1 दैट इज 4, और 0 रहेगा जब n लेस देन इक्वल टू 3 plus 1 दैट इज 4। तो यहां से चालू हो जाएगा, ये रहेगा दिस मच फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और 0 रहेगा n लेस देन 4। सो नाउ एंटायर सिग्नल विल बिकम, your hn will become y1n minus y2n। so it will gives us the summation that is summation k equal to 0 n minus 1 half to the power k minus k equal to 3 to n minus 1 half to the power k। ठीक है, ये रहेगा मेरा टोटल सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज h ऑफ n। ज्यादा कॉम्प्लिकेसी में जाना नहीं है, यहां तक छोड़ दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? एनी डाउट? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है या शी कैन रिलेट इट। तो मेरा ये सिस्टम दिया गया है, ठीक है, ये सिस्टम दिया गया है, H1n, H2n, H3n तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन है। सो पैरेलल कनेक्शन के लिए ज्यादा हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस हो गया, तो दैट विल गिव्स अस HN, सॉरी H डैश है। सो प्लस होने के बाद H डैश n दूसरे सिस्टम के साथ सीरीज में है, तो सीरीज में मेरा कन्वोल्यूशन, तो HN इज
this system convolution with this system. So Hn, this system convolution with this system. So this system H dash n का value कितना है? H2n plus H3n. So now just expand the equation. So I will get Hn equal to H1n convolution with H2n plus H1n convolution of H3n. So in that case, we will get two convolution part. That is part A consisting of H1n, H2n convolution and part B consists of H1n convolution of H3n. ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, अब वैल्यू देखूंगा क्या क्या दिया है एज पर द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू हैज बीन गिवन, सो आई हैव टू जस्ट पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन. सो इसको मैं इजी टू कैलकुलेशन के लिए पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करता हूँ. तो पार्ट ए है H1n कॉन्वोल्यूशन ऑफ विथ H2n. सो यहाँ पे H1n का वैल्यू पुट किया, H2n मेरा डेल्टा n है. तो डेल्टा n है मतलब इसका वैल्यू 1. ठीक है, सो डेल्टा n का वैल्यू 1 है. तो दिस H1n कॉन्वोल्यूशन ऑफ H2n ये हो गया मेरा दिस मच इक्वेशन सिंपली. नाउ मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है H2n कन्वोल्यूशन H1n कन्वोल्यूशन विद H3n. तो यहाँ पे भी देखो दो पार्ट है. एक्चुअली मेरा आंसर और एक पार्ट ऐड होगा, वहां पे लास्ट में कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पार्ट आ रहा है. सो दो पार्ट में से, ये दो पार्ट में से क्या होगा, दो पार्ट को हम अलग कर ले रहे हैं. तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, y1n में एक पार्ट ले रहा हूं, दैट इज कन्वोल्यूशन ऑफ yn इनटू कन्वोल्यूशन yn माइनस 1. ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है. तो नाउ ये जो पार्ट है, ये इसका फॉर्मूला है इफ x ऑफ n माइनस a कन्वोल्यूशन विथ x ऑफ n माइनस b then it has the result 1 at n greater than equal to a plus b and 0 at, सॉरी ये 0 होगा. ठीक है, 0 at n लेस देन इक्वल टू a प्लस b. तो यहाँ पे देखो un है, तो un माइनस 0 माइनस 1, तो a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 1 है. तो a प्लस 1 दैट इज 1. ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 पे इसका वैल्यू रहेगा दिस मच. तो यहाँ का वैल्यू और इसका तुम्हारा लिमिट क्या रहेगा, k का लिमिट रहेगा. और मैं वो एंडिंग टर्म स्टार्टिंग टर्म उसमें नहीं जाऊंगा, और वो मैं पार कर चुका. अब मैं देखूंगा एक स्टेप अहेड जाऊंगा. तो यहाँ पे देखूंगा n माइनस ए का वैल्यू क्या है, दैट इज a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है. और अपर पोर्शन रहेगा n माइनस बी. n माइनस बी मतलब यहाँ पे है n माइनस 1, n माइनस 1. ठीक है, तो यहां से वही वैल्यू पुट हो रहा है, दैट इज 1/2 n के जगह k हो जाएगा. फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट इज a प्लस बी, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज a प्लस बी. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये y1. नाउ एक मिनट, यहाँ पे एक जगह पे नाउ मैं y2 पे जाऊंगा. तो y2 में देखो लिमिट कहां से होगा, n प्लस n माइनस, यहाँ पे क्या है n माइनस ए. सो k इक्वल टू a, n माइनस a का वैल्यू 3 है. अपर लिमिट होगा u ऑफ n माइनस बी. सो यहाँ पे n माइनस बी क्या है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1. this much equal to this one, that is 1 multiplied with this, that will gives you this. So for n equal to a plus b, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 1 है, तो a plus b 3 plus 4. 0 आएगा कब, जब लेस देन इक्वल टू a plus b होगा, दैट इज 4. ठीक है, सो नाउ कंबाइन दिस, सो आई विल गेट, यहाँ पे रुको, ये वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे हम, ये वाला हो गया पार्ट बी. ठीक है, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एच एन आई विल राइट पार्ट बी. पार्ट बी इंस्टेड ऑफ एच एन आई विल राइट पार्ट बी.
So now the total answer will h of n equal to solution from part A and part B. So part A में मेरा solution क्या था? That is this much, half. So I will like this. So hn half to the power n un माइनस u n माइनस 3, ये हो गया मेरा पार्ट ए का सोल्यूशन, प्लस प्लस समेशन k इक्वल टू 0 n माइनस 1 1/2 to the power k माइनस k equal to 3 n minus 1 half to the power k. So this will be the solution. No need to solve this. ठीक है? So this is the solution. This is the total system. So this is the interconnection of LTI system. In next class, we will move to the part 2 because from this relation, we will find out the deconvolution of the system. That is, input signal दिया रहेगा, sorry, तुम्हारा आउटपुट सिग्नल दिया रहेगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया रहेगा, तुमको निकालना पड़ेगा इनपुट, कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या हो सकता है. So is it clear to everyone? Is the concept is clear to everyone? Because I think from 10:20 you Yes, have sir. an, huh? Clear na? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so from 10:20, I think another class is going on. So without wasting your time, I am concluding the class. Okay, thank you all.